Good evening, everyone. I'm your host Ayush Shukla, and I welcome you all to a brand new session from Idea to Empire. And today we have a really inspiring guest with us, Mr. Hussein Saifi, CEO and co-founder of Hacker Kernel. He started his journey as an entrepreneur at the age of 18 after dropping out of college. His visionary leadership and technical expertise have propelled Hacker Kernel to new heights. He, along with his team of over 100 people, have raised Hacker Kernel to a valuation of over 10 million rupees. A very good evening, sir. We are thrilled to have you with us today and we look forward to hearing your insights and experiences. Thank you, Ayush, for having me. Really great. Really grateful to be on this platform and being able to connect with you guys to share my journey and also inspire new breed of entrepreneurs to take India and Bhopal forward. Yeah, thank you, sir. So first, I would like to give a brief info of the event. First, we would start with the questions we have gathered from our college. Then we Sure. would proceed with the open Q and A session that our audience would from YouTube would ask you. So can we Sure. continue, sir? Sure. Please So proceed. proceeding with the first question, could you give a brief introduction about yourself and your journey to finding HackerCon? Sure. So myself, Hussain Safi, uh, I am a 25, 26 years old budding entrepreneur. I started my journey when I was 18 years old. If you talk about Hacker Kernel is a digital transformation and product engineering company based out of Bhopal. We work with clients all over the globe and try to deliver top notch technology solutions to them, which can change their lives. We started this back in 2017 with my small team of three co-founders, me, Ritik Soni, and Yash Dabi. We from that day our vision was to build an enterprise which which lasts longer than we last in this world. So we are building an organization which lives longer than we are. On this journey we have just started. We are a team of 100 people working out of Bhopal purely, and we are doing great stuff. A very inspiring journey, sir. So, moving on to the next question. At this Sure. age, everyone usually has a common plan to get a degree and then get a job. So, but you dropped out of college and started your own business. So, from where did you get this idea and how did you do that? Sure. So Ayush, honestly, I started coding when I was 12 years old. I started coding when I was 12 years old. My dad brought me a small computer. It was a P4 beaten up computer, which my dad got me. I started learning about internet. I started learning about games, and that curiosity of playing games ended up me creating a website which enables users to download games online for free. In that quest, I built a song downloading website, and that song downloading website allowed me to get into the world of programming. I learned entire programming from YouTube, built out multiple sites, started freelancing. Till date, when I was doing freelancing, I was 17, 18 years old. At that time I got at that time my aim was really clear that I want to go to Bangalore because Bhopal do not have any opportunity for me, and I want to go to Bangalore. As I am a very dear son to my mom never wanted me to go to Bangalore, so she always insisted me that you stay here in Bhopal. In that just stick to my mind. I started freelancing. In that freelancing journey, I got some clients, and from one client to other I started hiring a team. We built a team, and when I was in college, I was pursuing BCA from Extol Institute of Management. I was in the first semester. At that time, I was having a team of five people. Two or three were my co-founders, two were interns. This was my team, and at that time, I was also having multiple clients to whom I was working. So then I decided that it was a brief event. What happened? I was giving an exam in college. It was a small exam, or it was a semester, and
One side, my examiner was trying to take my exam, and on the other side, my clients were calling me. I got my dad that पापा या तो मैं कॉलेज पढ़ूंगा या मैं काम करूंगा. पापा ने कहा जो करना है तू कर तेरे हिसाब से कर. So at that day I decided that I will go to college and I dropped out of college. Also, the biggest reason for me dropping out of college was because I was from the age of 12. I was doing coding. I was really proficient in most of my coding knowledge, algorithm, DSA, and all those things. And whatever they were teaching me in my BCA, I already knew. So I was just wasting my time. Yeah. So since you talked about your parents, I would like to continue with that thing. What role Sure. did your family play in shaping your career? I firmly believe that everyone's life is shaped by the environment and the surrounding belongs. Right? Every person is built the same. Just his surroundings and environment change him. My parents had a great role in my upbringing. They taught me the value of persistence. They taught me the value of work. They taught me the value of sacrifice. And because of those values, I am able to run a service business at this moment. If you Ayush, if you consider service business seems to be easy to do, but those are very hard. जब तक आपका एक या दो क्लाइंट है ना, शुरू की क्लाइंट, यू विल फील अच्छा अच्छा है, पैसा आ रहा है, सब कुछ है. बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग अ प्रोसेस रिपीटेडली, सर्विस बिजनेस इज रियली वर्क. आपको डे इन डे आउट काम करना पड़ता है. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट यू नीड टू हैव एन इंटरनल पैशन दैट नहीं, आई वांट टू डू दिस. नहीं तो सब नहीं कर पाते. Yeah. So, sir, you talked about service-based businesses. Like Yes. your own business is software as a service. So, can you elaborate on the theme software as a service? Sure. So basically, to understand software as a service is a great concept. In this concept, you basically build a software either for people doing their daily lives, or for enterprises to enhance their productivity. You build softwares, and though you build a software for a large group of problems. So let's say some enterprises have a problem of accounting, so you build an accounting software which is GST enabled. And then you have a market where you have hundreds and hundreds of businesses who need softwares which have GST enabled. So then you can sell a subscription or a rental for that particular software, and you can charge those businesses to use your software on a monthly basis. To my company, Hacker Kernel, we are both a service company, and also we have some enterprise products which we sell to our clients. So basically, we are mostly a service company with some products which are on the SaaS side. Okay. Sir. So, moving on to the next question. So, Sure. what's your take on artificial intelligence and how are you using it in your business? Artificial intelligence is really a revolution in the current time. I would say everyone should embrace the technology changes because it will enhance everyone's life, right? In the last decade, if you see, ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं हुआ है. आपके पास फ़ोन था, आज भी वही फ़ोन है. जो 2008-10 में जैसा फ़ोन आता था, ऐसा ही फ़ोन आज भी आ रहा है. ठीक है? यस, कुछ अपडेट्स हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं. हमारे पास फेसबुक 2004-5 में आया था, 2006-7 में आया था. उसके बाद इंस्टाग्राम आया, व्हाट्सएप आया. उसके बाद से कोई एक बहुत बड़ा टेक प्रोडक्ट सबकी लाइफ चेंज करे ऐसा कुछ भी नहीं आया, राइट? There is not a single product which change everyone's life. This is the time. Now we are in the era, or we have started in the era जहाँ पे AI is changing everyone's life. सबकी life धीरे धीरे change होगी. Now you have AI generating images, you have AI generating content, you have AI generating videos, you have AI helping everyone doing everything. ठीक है? तो AI is very useful. अगर आप डेवलपर नहीं हो, इवन इफ यू आर नॉट अ डेवलपर, इवन इफ यू आर नॉट अ कोडर, you should start using AI tools, right? Be it GPT, be it anything, right? आपको वो सब करना चाहिए. Secondly, if you talk about us,
we are embracing AI with open hands. We are building a team internally, which is our R&D team, which is focusing on building tools which are AI enabled. Right? There are two types of software in this world. One is an AI software, one is an AI enabled software. We are on the AI enabled side. For example, अगर someone builds a software and we add AI to it, आपने कोई एक accounting software बनाया, we add an AI which enables you to generate multiple types of reports on the fly, right? So this is called an AI enabled software. We have a dedicated R&D team जो AI के नए changes को learn कर रही है, and we are implementing many AI softwares to for our clients. So it's a ongoing process, and हम लोग इसके लिए बहुत एक बड़ी टीम बना रहे हैं, और हम बहुत से प्रोजेक्ट्स में अभी इसको इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं. Okay, so since you talked about your team, as a founder, how tough was it to find your first employees, and what factors did you consider before hiring them? First employees are always the hardest, right? Because everyone who is trying to get a job wants a stable job. And who wants to work with an 18-year-old guy sitting in his pajamas and t-shirt doing some coding, right? Who wants to work with him? Who want to call him as his boss? So finding those set of people was very tough. I was really fortunate that I was technical. Um, so I was able to find really good people, fresh grads, who were really interested in working and learning. So in the initial stages, the thing which we sell to our employees was कि आप हमारे साथ काम करोगे तो you will learn. वो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए आते थे. इट वॉज नॉट फॉर द अर्निंग, बिकॉज हमारे पास ही पैसे नहीं थे उनको देने के, राइट? सो दे यूज टू कम फॉर लर्निंग. एंड बाय व्हाट टू से, हम आज भी आई एम वेरी प्राउड दैट मेरे मोस्टली एक्स एम्प्लॉयज हु हैव लेफ्ट मी फ्रॉम डे वन टू टुडे, most of them are working in really really big organization and have achieved a good life for them. Okay, so that No, was very also inspiring. also I Yeah. want to tell you a good story. हमारे साथ क्या हुआ था? I started my first office in my bedroom. It was a small bedroom of, let's say, the 150 square feet. We put three tables on this side, three tables on this side, and it was six people capacity in the office. We called, and at the time we were using Internshala to hire an intern. That intern was supposed to come to us to visit my office. My bedroom was at the fourth floor. वो इंटर्न आया. एट द टाइम आई वाज नॉट इन द ऑफिस. आई वेंट फॉर सम वर्क और आउटसाइड. वो मेरे ऑफिस आया, वो ऊपर तक आया, उसने ऑफिस देखा कि कोई भी नहीं है, वो नीचे गया, वो चला गया, एंड देन ही नेवर पिक माय कॉल. Because what I told you कि जब भी whenever someone from college is trying to find his first job or his first internship, वो चाहता है कि उसको stability मिले. He wants some, मतलब something जो दिखे कि हाँ यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे ये काम होता है, and I will learn something from here, or I will earn something from here. और वो उसको दोनों चीज़ें नहीं दिखी, तो then he went away. That's quite interesting to know, sir. So, moving on to the next question. What Sure. advice would you like to give to someone who is starting his journey as an entrepreneur? The most important advice I would like to give to anyone who is starting his journey as an entrepreneur is to start. Simple. Start करो. Whatever idea you have. Firstly, you should know, आप में दो चीज़ होना चाहिए. Firstly, you should understand yourself, right? कि मुझे सही में entrepreneurship करना है कि नहीं करना, या मैंने सिर्फ सोनी पे शार्क टैंक देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वांट टू डू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? सो फर्स्टली यू शुड नो दैट. एक बार आपको अगर ये है कि हाँ, आई वांट टू डू इट, दिस इज माय थिंग, दिस इज माय कॉलिंग, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट. एंड यू शुड नो कि बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, परसिवियरेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी धीरे-धीरे, एंड अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा. सो यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ इन लाइफ एवरी टाइम, every day, every minute. And yeah, that's the best advice someone can give you. Start, right? और एक बात मैं और बताऊँ, some people
लाइक स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट होता है, बहुत सी जगह कोट करते हैं लोग कि इट्स अ 5% सक्सेस रेट और 1% सक्सेस रेट, 10% सक्सेस रेट। पर मैं आपको बताऊँ, एवरी वन हु इज़ डूइंग अ स्टार्टअप इज़ लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच विल हेल्प हिम इन हिज करियर। तो अगर आपने आज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करी, इवन इफ यू बिल्ड अ 5 मेंबर टीम एंड यू आर गुड एट सेल्स, आपको मैं सही बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी में जब आप सेल्स की जॉब ढूंढोगे ना, तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। बिकॉज वो कंपनी ये देखेगी इसने 4 लोगों को 1 साल तक सेल्स ला के दी थी, उसके बाद इसने छोड़ा है, तो दे विल ऑन हैंड हायर यू, राइट? तो द बेस्ट एडवाइस इज जस्ट टू स्टार्ट। Okay, so continuing with the same question, we have started. Now, what should be our first steps to make it successful? योर फर्स्ट स्टेप शुड बी जनरेटिंग मनी। आपको Yes. सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको पैसे बनाने हैं। यू नीड टू बी अ कैश फ्लो बिजनेस। आपको यू नीड टू क्रिएट अ बिजनेस, राइट? अनलेस एंड अनटिल आपका कोई ऐसा आइडिया है वेयर यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू स्टार्ट, आपको फर्स्टली स्टार्ट करना चाहिए एंड यू शुड अर्न सम मनी, ताकि आप अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकें। यू कैन वैलिडेट योर आइडिया एंड देन यू कैन रीच आउट टू इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, एंड देन who are looking to invest in your company, and then you can take investment from them. So सबसे important, the thing which is most important is to earn money, build a business plan. This business plan के तो you will be able to generate some money. Okay, sir. So, nice answer. Now, going with the next question, what are the common mistakes we should avoid during our entrepreneurial journey? Common mistake. The biggest mistake you should avoid while in your entrepreneur journey is to pay yourself last, right? आपको when you are doing a business or a startup, the most important thing is cash, right? I call cash as oxygen for a business, right? तो आपको सबसे लास्ट में पे करना चाहिए, and especially on the initial days, what I see, there are two major problems. Right? Let's recategorize it. Firstly is to save cash and pay yourself at the last. बहुत से लोग क्या करते हैं, when they start a business, they start earning a certain amount of money, इनके पास थोड़ी सी टीम होती है, they start to spend on their lifestyles, they start to get a big car, get a big house, get a big phone, और वो सारी चीज़ें करना चालू कर देते हैं because they think they have made it, okay, and they think they deserve it. सेकेंडली, उनको अपने आप को सबसे लास्ट में पे करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि दे वुड बी सेविंग दैट मनी एंड देन दे कुड यूज़ दैट मनी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड, राइट? So, yeah, so there is no point in growing a plant and taking out the first fruit. Rather than, what beautiful it is to grow multiple plants, grow a garden, and then you become a mango dealer, right? आप शुरू में ज़्यादा पैसे निकाल लोगे तो यू वोंट बी एबल टू ग्रो योर कंपनी। आप उसको ग्रो करने दो, इट्स लॉन्ग टर्म गेम। जब आप उसको ग्रो करने दोगे, देन लेटर ऑन यू विल बी एबल टू build a better lifestyle, have better things, do better. The second problem which I feel with most of the people is distraction. आप once you start doing one thing, आपने लगा कि I have built a startup, I have done this thing, मैं X amount of revenue हो रहा है, then what you start doing is you आप अपना टाइम उसको कम करने लग जाते हो, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ योर लीग। आप कुछ और करने लगते हो। यू स्टार्ट यू जो बिज़नेस ने आपको यहाँ तक लेके आया, आप उसको छोड़ के दूसरी चीज़ें ज़्यादा करने लग जाते हो, एंड उसके बाद जैसे कि आप कुछ और बिज़नेस खोल लोगे, मे बी यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, यू स्टार्ट डूइंग रियल एस्टेट और समथिंग, जो भी आप करने लगोगे, एंड दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट गिव यू अ डाउनफॉल। आपको पहले अपने बिजनेस को इतना स्ट्रॉन्ग करना है दैट इट रन्स विदाउट यू, मतलब आपकी डिपेंडेंसी के अलावा वो रन कर सके, देन यू कैन स्पेंड योर टाइम ऑन सम अदर थिंग्स। Okay, so that's very. I think audience are taking up notes today.
So moving on to the next question. How does staying up to date with technological advances impact your work? We are in the technology business, so it's very very important for us to be on top of technology every time. हम लोग um, to answer your question, it is very important. Firstly, because ultimately, if I am doing certain things which are outdated, then I won't have business, right? अगर मैं वही चीज़ आज भी बेच रहा हूँ जो 2010 में होती थी, so then I won't have any business. So it is very very important for me to upgrade myself, to add things which is now relevant. ठीक है, एक एक टाइम था जब डेस्कटॉप पे आप यू हैव सॉफ्टवेयर्स ऑन योर फिजिकल premises, देन क्लाउड आया, देन सास सॉफ्टवेयर्स आए, देन नाउ यू हैव, देन कस्टम सॉफ्टवेयर्स आए, देन ERPs, CRMs आए, नाउ यू हैव लो कोड, राइट? You have AI, now you have blockchain. तो बहुत सी चीज़ें हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बीइंग अप टू डेट टू टेक्नोलॉजी. और वो आपको जब ही आप कर पाओगे व्हेन यू हैव काइंड ऑफ रिसोर्सेज और लेवरेज. आई कॉल इट लेवरेज. लेवरेज दो चीज़ों का होता है. लेवरेज इज आइदर यू हैव द मनी, तो आप अपनी एक R&D टीम सेटअप कर सको जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्चेस कर सके, या यू हैव लेवरेज. अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो द बिगेस्ट लेवरेज यू हैव इज टाइम. तो आप अपने टाइम से आप नई टेक्नोलॉजीज को इवेल्युएट करोगे, उसमें आप ग्रो करोगे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. So if you talk about ourselves, so we have a dedicated, our organization is very very focused on learning. We have a tech stack. हमारे पास भी एक बहुत बड़ा tech stack है जिसमें हम लोग different different technologies पे काम करते हैं. एंड अगर कोई भी पर्सन या कोई भी फ्रेश ग्रेड या इवन 2 years एक्सपीरियंस, ये 8 year या 3 year एक्सपीरियंस डेवलपर हमें ज्वाइन करता है, तो वट एवर टाइम ही हैज़ इन हिज डे, वी ट्राई दैट वो उसकी स्किल बढ़ रही है. एवरी मंथ ही इज़ एबल टू लर्न समथिंग. अगर कोई बंदा नोट पे आता है तो वी ट्राई के हाँ उसको वी कैन टीच हिम रिएक्ट सो दैट ही कैन बिकम अ फुल स्टैक गाय. Yeah, okay, sir. So, sir, since you talked about money, how did you get your first investors? And can you share some tips on how to approach investors for a budding entrepreneur? Uh, Honestly, I haven't raised any money, so I'm not sure कि कैसे होता है. पर फर्स्टली मैं आपको ये बता सकता हूँ, हाई आई गॉट माई फर्स्ट कस्टमर. ही पेड मी टू स्टार्ट माई बिजनेस. आई अप्रोच्ड रेस्टोरेंट ओनर in a new locality and told him that you have amazing products, you have amazing burgers, you should have a website. At that time, ना Zomato था, ना Swiggy था, कुछ नहीं था, right? So I told him that you should have a website जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को डाल सको एंड पीपल फ्रॉम योर लोकेलिटी कैन ऑर्डर एंड देन यू कैन डिलीवर. ही लाइक द आइडिया. ही टोल्ड मी कि आप मुझे वेबसाइट बना दो. मैंने उसको वेबसाइट बनाई. नेक्स्ट वीक आके उसको वेबसाइट दिखाई. ही पेड मी 5,000 रुपीज, एंड that was my investment for starting my business. Okay, so that was quite amazing. So, next question, sir. As we all know, you are the founder of another company called Urban Feed. So, what strategies do you apply to manage your time and workload between two companies? I'm still learning on that. As I told you, okay, it's very important to be focused. So I'm still trying to learn कि हम कैसे what how we can manage two businesses. If you talk about me personally, what I try to do is I try to have a roster of my daily tasks which are really really essential to do. And every day when I come to office in morning, I will check my roster that what is the essential thing I need to do. For example, have calls with marketing team, have demos with the urban feed team, have check the sales, check sales or inventory and whatever it is. सो हमारे पास मेरे पास रोस्टर होता है, एंड आई मेक श्योर कि जो मेरा वो रोस्टर के टास्क हैं बिफोर आई गो टू होम, वो मेरे रोस्टर के टास्क 100% कंप्लीटेड हो, एंड उसके अलावा सारे टास्क जो हो कंप्लीट हो. ऑल्सो आई विल गिव यू अ प्रोडक्टिविटी हैक. आप यू द बिगेस्ट आर्ट इज टू डेलीगेट.
ठीक है, आपको काम डेलीगेट करना आना चाहिए। इन द वंस यू रीच अ स्टेज, आपको काम डेलीगेट करना आना चाहिए, एंड यू शुड ओनली फोकस योर टाइम ऑन टास्क विच आर इम्पॉर्टेंट। आपको ऐसे टास्क नहीं करना चाहिए जो आपको पैसे नहीं बना के दे रहे हैं, right? You can either divide your task in two categories: money task and normal task. आपको फर्स्टली अपने मनी टास्क पे काम करना चाहिए जो आपको पैसे बना के दे रहा है। व्हाट आई मीन बाय पैसे बना के दे रहा है इज टेकिंग मीटिंग्स विद द क्लाइंट, टेकिंग डूइंग फॉलो अप्स एंड ऑल दोस थिंग्स, डूइंग फॉलो अप्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो टास्क इंपॉर्टेंट होता है। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी हैव वाटर। Yes. No issue. रियली सॉरी। हाँ जी। Yeah. So, moving on to the next question, I think that would be a good. Our college students would be eager to know that answer. जी, What's the role of college education in life? कॉलेज से एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोंट डू द थिंग विच आई डिड and leave college. College education is very very important, but there's a big but, है ना? There's a big but. What firstly let's understand, कॉलेज आपको क्या देता है? कॉलेज आपको नेटवर्क देता है। ठीक है, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपकी लाइफ में जो आपके शायद को फाउंडर बन सकते हैं, आपके फ्यूचर एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं, आपकी ए टीम बन सकती है, एंड दोज गाइज वुड बी फ्रॉम योर कॉलेज, राइट? इफ़ यू टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट में सचिन एंड बिनी बंसल का जो फर्स्ट हायर था वॉज देयर सीनियर फ्रॉम कॉलेज। तो कॉलेज गिव यू दैट नेटवर्क। ठीक है, आपको वो चीज़ मिलेगी कॉलेज से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज आपको डिसिप्लिन भी सिखा सकता है अगर आप डिसिप्लिन होना चाहते हो तो, नहीं तो नहीं सिखा सकता। दूसरी चीज़, there's a big but in our Indian education system. What I believe, we have the subjects which we have are bit outdated. आज हमारे पास वो शायद वो चीज़ें उतना हम अपग्रेडेड नहीं है। तो आपको कॉलेज में, कॉलेज तो साथ में रहना ही है, लेक्चर्स तो लेने ही है, उसके साथ में यू शुड स्टार्ट लर्निंग योर सेल्फ। आपको अपने पास से खुद भी मेहनत करनी है। एंड इफ़ यू आर एबल टू, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन फ्यूचर, तो आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए। इन योर कॉलेज जर्नी ट्राई टू गेट एटलीस्ट 2-3 इंटर्नशिप्स डन, तो वहाँ पे आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा। कॉलेज लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट कॉलेज के साथ आपको अपने एंड पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। खाली कॉलेज पढ़ के आप सोचो कि आफ्टर माई 4 years or 3 years समवन वुड बी वेटिंग आउटसाइड माई कॉलेज डोर एंड गिविंग मी अ जॉब, तो वो ऐसा नहीं होगा। Okay, so that's a really inspiring answer. So, sir, as we are seeing, many big companies, tech companies, are currently laying off a huge amount of employees due to recession. So, what are your views on the current recession that we are facing in the tech industry? And do you think it would slow down or it would worsen with time? नहीं, व्हाट आई फील इज द स्टॉर्म हैज वेंट अवे, राइट? पहले ये समझते हैं हुआ क्या है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोविड यूएस कंपनीज रियलाइज्ड के काम कहीं से भी हो सकता है, काम इंडिया से भी हो सकता है, काम कहीं से भी हो सकता है, राइट? एट दैट टाइम एवरी ईच एंड एवरी कंपनी, बिग कंपनी, गॉट अ लॉट ऑफ बिजनेस। आप अभी जाके स्टॉक रिपोर्ट्स उठाओगे तो आपको देखोगे कि एट द टाइम ऑफ कोविड एवरी कंपनीज रेवेन्यू वर गोइंग अप। ठीक है, एट दैट टाइम देयर वाज ह्यूज डिमांड, right? Us time companies need to tackle that demand, they have hired more than they need, right? In services business, company hire for the future, company अभी के लिए hire नहीं करती, mostly they hire for the future, they hire freshers, वो 2-3 महीने उनको train करते हैं, and then take them on projects। ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत hire कर लिए, एंड जब आपने ज़्यादा हायर कर लिए, व्हेन कोविड ख़त्म हुआ, उसके बाद यूएस ने अपने जो इंटरेस्ट रेट, जो फेड है उनका, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गॉट इंक्रीज्ड, then the capital which was then the यूएस कंपनीज बिलीव कि हाँ, हम कैपिटल को टेक्नोलॉजी में ना लगा के अगर हम उसको सेफ रखेंगे,
हम हमारे एफडीज और उनकी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें रखेंगे तो वी विल अर्न मोर। ठीक है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना कम हो गया, एंड व्हेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो हमारे पास इंडियन कंपनीज के पास बहुत से लोग हो गए जो आइडियल हैं और कोई उनके पास सेल्स पाइपलाइन नहीं है, तो उन लोगों ने उनको फायर करना स्टार्ट कर दिया, राइट। नाउ ये एम्पलीफाई ऐसे हो गया कि इसी के साथ, ये तो सर्विसेज की बात हो गई, इसी के साथ जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं उनका इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया, राइट। यू सॉ फंडिंग विंटर, आपको नए इन्वेस्टमेंट्स आना बंद हो गए और बहुत हार्ड हो गया इन्वेस्टमेंट आना। नहीं तो आप 2 साल पहले तो उठा के देखते थे तो इंडिया ने ओवर 20-25 यूनिकॉर्न्स एक साल में प्रोड्यूस किए थे, एंड हमने 3 या 4 साल में 100 यूनिकॉर्न्स का फिगर पार कर दिया था। बट उसके बाद फिर यूनिकॉर्न्स में ऐसा लगा कि ब्रेक लग गया। उसका रीज़न ये था कि इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई। उसका भी सेम रीज़न था कि फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा तो जो स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है उन लोगों को पैसा बनाना पड़ेगा, नहीं तो दे वुड इवेंचुअली बी नॉट बी एबल टू सस्टेन। दैट्स वाई आपने जोमेटो के, बाईजू के, पेटीएम के, इन सब के आपने ले ऑफ्स देखे। अब बात ये करते हैं कि द ऑल द थिंग्स हैव पास्ड अवे, वो सब खत्म हो गया। द अब इन फ्यूचर, इन मे बी इन 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर थिंग्स वुड गेट स्टेबल। अभी ही डिमांड जो है बाहर की कंपनीज से फॉर टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट इन द पास्ट 2 क्वार्टर्स, और नाउ धीरे धीरे हायरिंग उतनी ही तेज़ी से होगी। अगेन हायरिंग आपकी जो होगी वो स्किल्ड लोगों की होगी, उनकी नहीं होगी जिनको कुछ नहीं आता। सो इट्स फर्स्टली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, और आप अपनी स्किल को बेटर करो। Hiring hogi, and then this phase will also pass. I believe in 1 or 2 quarter, we won't be talking about any recession, or we won't be talking about any layoffs. Okay, so that's very relieving. So moving on to the next question. How do you foster innovation and creativity in your team? Foster innovation and creativity in my team. Firstly, creativity and innovation is provided to people when they feel secure, when they feel कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो दैट वुड बी लिसनड अप और वो बात हमारी सुनी जाएगी। तो सबसे पहले तो क्रिएटिविटी जब ही आती है, वरना मोस्टली कॉर्पोरेट जॉब्स पे हम मीम्स देखते ही हैं दैट इट इज़ अ डेड एंड जॉब। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी जब ही आती है जब आप एक ऐसा वर्क प्लेस हो जो ओपन हो, जहाँ पे आप अपने ओपिनियंस को रख सको, अपने लिए बात कर सको, कोई चीज़ आपको लगती है गलत है उसको आप अपने जो सीनियर्स हैं, आपके बडीज़ हैं, उन तक लेके जा सको, एंड वो चीज़ आपकी सुनी जाए। तो देन यू फील, देन अपने आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी आती है। सेकेंडली, सो फर्स्टली यू नीड टू बिल्ड एन एनवायरनमेंट। सेकेंडली, आपको उस एनवायरनमेंट को इंकरेज करना होता है, राइट। सो करेंटली वी आर हैविंग, आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। करेंटली आपने मुझसे पूछा था कि हम एआई के लिए क्या करते हैं, तो करेंटली वी आर हैविंग अ 4 week हैकाथॉन बिटवीन our office. We have selected 16 senior employees from our office who are willing to learn AI, right. We have divided all those 16 people in 4 teams, and those 4 teams have pitched 4 different ideas for an AI project, and we are giving them dedicated time to work on that particular project in office as well and out of office as well. In 4 weeks they need to build a prototype, and then we would have the entire office come out, sit in our halls. We will present all the 4 products which they have built, and whatever team will build the best product we will award them. So आपको innovation को foster करना होता है, innovation को आपको encourage करना होता है. You need to have a culture and then you need to promote it. That's a very creative idea, sir. So, moving on to the next question. The podcast title mentions from idea to empire. So, can you elaborate on the initial idea for Hacker Kernel and how did it evolve into the company it is today? Right. So, uh, if I would be really honest with you, Hacker Kernel was not supposed to be a service company.
we were supposed to build a product, right? We were building a coding platform which allowed people to have competitive coding test, and then हम उनको एक परसेंटेज देते कि हाउ गुड दे आर, राइट, एंड उनको बैजेस देने वाले थे. एंड ऑल्सो इट वुड बी अ मिक्स ऑफ फ्री ऑल्सो. एंड दैट प्लेटफॉर्म वी वुड हैव क्लाइंट्स हु आर विलिंग टू गिव देयर प्रोजेक्ट्स to people who are skilled, right? So that was the initial idea of Hacker Kernel. We built a basic prototype, but it didn't work, so then we dropped it. Then we started doing services. Once we started doing services, then we realized कि खाली हम freelancing करेंगे या services करेंगे काम नहीं बनना. So then we started a bigger vision. We want to build a company which outlast ourselves. We want to build a 500 people company from Bhopal, which is able to, which give opportunity to 500 engineers from Bhopal who would, if अगर उनके पास opportunity नहीं होती तो उनको कहीं और जाना पड़ता, and they would have to leave their families. तो हम वो 500 लोगों को opportunities देना चाहते हैं. That is our current goal, and hopefully we would achieve in few years, maybe 2 years. We are targeting for that. So maybe by 2026 we would be able to achieve that goal and become one of the biggest uh, local based one of the biggest services company purely based out of Bhopal. So that is our vision and that is our idea. Yes, sir. Can you please elaborate on the how do you plan to achieve your long-term goals for Hacker Kernel, and if there are any more goals that you would like to tell us? Sure. So basically, goals. What I believe is goals are dynamic. Firstly, तो goal change होते रहते हैं, and I do not believe in setting up a big goal जो मतलब अभी होना नहीं है. So I set goals in a time frame of 3 years or 4 years, and then my plan is to try to achieve it in 2 years or 3 years, right? अगर मैंने 5 साल का गोल सेट किया है, मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं उसको 2 या 3 साल में फिनिश कर सकूँ. करंट हमारा गोल जो मैंने आपको बताया इज़ फॉर अ 500 पीपल कंपनी purely based out of Bhopal, and we won't be setting up any office apart from Bhopal currently. हम लोग how we are planning to achieve that is by firstly uh, is by setting up a good sales team जो अभी हमारा current work है कि we are setting up a great sales team जो कि help करे हमें propel करने में growth. Currently अगर हम we are able to hire 5 people 10 people in a month, अगर we would be we would be having a great sales team. हम उन peoples को 10 की जगह 20 लोग हम in a month hire कर पाएंगे, and we will be able to achieve our goal faster. So that's the basic thing which we are doing currently right now, and we have a lot of openings. So anyone is looking for a job or internship can go onto the website and apply for that. Yeah, so if anyone wants to, please apply. So Sure, thank you, sir, for your insightful discussion. If you are ready, we would like to move on to the audience questions. for Does sure. that sound good to you? Yeah, Okay, cool. so let's start. Okay. So first question is for Prerit Kushwaha. Does AI help startups at their early stages? If you are an AI startup, AI would for sure help you. इवन इफ़ यू आर नॉट एन एआई स्टार्टअप, एआई आपको यूज़ करने में हेल्प करेगी. तो अगर आप एआई को यूज़ कर पा रहे हो आपके डेली टास्क करने में और उन टास्क को बेटर करने में, तो आपको ज़रूर हेल्प करेगी. ठीक है, इफ़ यू जैसे फॉर एग्जांपल आपको एचआर, वंस आपका स्टार्टअप अभी छोटा है तो यू आर चीफ एवरीथिंग ऑफिसर. ठीक है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं हो, आप चीफ एवरीथिंग ऑफिसर हो. आप एचआर भी देख रहे हो, आप ऑफिस की क्लीनिनेस भी देख रहे हो, आप एडमिन भी देख रहे हो, आप सेल्स भी कर रहे हो, आप सर्विस भी कर रहे हो, सब कर रहे हो. तो इन ऑर्डर टू सेव टाइम यू कैन यूज़ एआई, और एआई से आप अपने मेल्स बनवा सकते हो, आप कोई ऐसे रिपीटेटिव काम है वो कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे आपको पोस्ट लिखना है वो लिख सकते हो, आप कमेंट्स कर सकते हो. तो यू कैन डू एवरीथिंग. आप सोशल मीडिया की जो इमेज क्रिएशंस हैं वो सब कर सकते हो. तो एआई विल श्योरली हेल्प यू. एआई को आपको एम्ब्रेस करना चाहिए इन ईच एंड एवरी फॉर्म.
और जब आप वो एआई को यूज़ कर रहे होगे तो आपको लेटर ऑन आइडियाज़ भी आएंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में उन एआई को यूज़ कर सकते हो। Okay, so that answers the first question. Moving on to the next question. Uh, Next question is from Karthik. As you said, it's difficult to find team who can have same vision as yours and listen to you. Can you please tell how you did that team building? टीम बिल्डिंग इज़ रियली रियली हार्ड एट एवरी स्टेजेस। आज भी अभी भी हमारे लिए टीम बिल्डिंग हार्ड है। उस टाइम तो और ही ज़्यादा हार्ड थी। तो फर्स्टली मैं आपको ये बोलूँगा कि जो भी आप कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आपको पहले खुद वो पूरा आना चाहिए। आप एक बार एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस, राइट, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस आपको वो खुद आना चाहिए। वंस आपको वो सारी चीज़ें खुद आएंगी ना, तो देन यू वुड बी इजीली बी एबल टू हायर समवन जिसको आप वो चीज़ें सिखा भी सकते हो, एंड देन यू कैन गेट दोज थिंग्स डन फ्रॉम दोज, राइट। तो पहली चीज़ होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ हायरिंग। फर्स्ट इज यू हंट फॉर अ को फाउंडर। अगर आपका वो सॉर्टेड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो उसके बाद आप टीम की बात कर रहे हो, तो टीम में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी भी रोल या पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो, ट्राई टू डू दैट थिंग योरसेल्फ। एक बार उसको थोड़ा सा सीखो, एंड देन ट्राई टू हायर समवन जो वो कर सकता है, ठीक है। सेकेंडली, आप डू नॉट एम फॉर द बेस्ट, राइट। जो भी बंदा बेस्ट उस चीज को कर सकता होगा वो मे बी आपके साथ नहीं आएगा। ट्राई फॉर सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट गाय, वो आपके साथ आ सकेगा, ठीक है। एंड देन ट्राई टू ग्रो म्यूचुअली विद देम। वो भी अपनी लाइफ में आपके साथ आपके स्टार्टअप में रह के सीखेंगे, आप भी उनके साथ रह के चीज़ें सीख पाओगे। एंड दिस इज द यूजुअल जर्नी ऑफ टीम बिल्डिंग। सेकेंडली, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि पीपल आपके साथ जब तक हैं, जब तक आप उनको कुछ दे सकते हो, राइट। आप दो चीज़ें दे सकते हो, आइदर यू कैन टीच देम और यू कैन पे देम, ठीक है। दो चीज़ें आप उनको दे सकते हो। एक तीसरी चीज़ होती है रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल थिंग्स, वो आपको करनी है। तो आप किसी को भी टीम मेंबर को हायर करो, लेट्स से आई एम एन एंड्रॉयड डेवलपर, मुझे बहुत अच्छा एंड्रॉयड आता है, तो मैं किसी भी जूनियर गाय को हायर कर सकता हूँ। वो मेरे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि वो मुझे देखता है कि अच्छा यार, इनको एंड्रॉयड बहुत अच्छा आता है, मैं इसके साथ काम करूंगा एक साल तो मैं बहुत अच्छा सीख जाऊंगा, एंड देन आई वुड बी एबल टू गो समवेयर एल्स एंड अर्न मोर, ठीक है। तो या तो आप वो चीज़ बहुत अच्छे सीखो, या तो फिर अगर आप हायर करो तो देन यू नीड टू पे देम। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप किसी को भी हायर करो, यू सिलेक्ट समवन, सो खाली डू नॉट टॉप एम फॉर द बेस्ट, आप सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट को भी हायर कर सकते हो, एंड देन यू कैन म्यूचुअली ग्रो। I hope that solves your query, Karthik. Now, moving on. Next question is from Manyata Singh. Who is a professional figure you greatly admire, and what lessons have you learned from their career? When I was a kid, I admired Mark Zuckerberg. Now I admire, the most I admire is Dhirubhai Ambani, because he started his business from nothing, and he's one of the biggest person in India. उसने हमें सिखाया कि how to dream, how to achieve, और I really admire him. I really read everything about him available, and I am a very मतलब I'm a guy who is really fascinated about business, so I follow each and every businessman. कोई भी बड़ा tycoon हो, कोई भी बड़ा entrepreneur हो, I try to follow them. I try to learn from them whatever they say. Okay, sir. So, personal question. Yes, sir. Like you talked about Dhirubhai Ambani. जी। My favorite entrepreneur is like Elon Musk. So, what are your opinions on him? Like, he's a quite controversial figure. Elon is a funny and sarcastic guy, और he is a genius guy. उसने मतलब he has built an image for himself, right? So he's a good guy. He's an amazing guy. I'm no one to say about him. I'm not even 0% of him, but he's a really amazing guy. Sarcastic है, he's funny. He takes no balls, आप बोल सकते हो. Secondly, what I admire about him is कि his dedication to work, कि he is able to
and turn them into reality, right? If you talk about Tesla, talk about SpaceX, talk about PayPal, talk about solar roof. So he also have a roof company, solar panel company. He also have a tunneling company. So ही ऑल्सो हैव हाइपरलूप. सो बहुत से उसने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट किया है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द हाइपरलूप आइडिया, तो उसने he envisioned that idea on some podcast, and then he converted that idea into a startup. उसने एक competition बना दिया and everyone was doing that idea, right? So he's a good guy. He has it, and no one is perfect. Like everyone has his pros, have his cons. So he's a good guy. So moving on with our next question. Next question is from Jaydeep Patle. What is the number one fear for an entrepreneur? Number one fear for an entrepreneur. Really nice question. बेसिकली entrepreneur अगर अपनी लाइफ में कुछ कर चुका है ना, तो उसके लिए ऐसे कुछ खास फेयर्स होते नहीं है. बिकॉज अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूँ, तो आई डोंट हैव एनी फियर जो मुझे हॉन्ट करता है कि यार कि ये हो जाएगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि being an entrepreneur, you are a firefighter, right? I'm a big Daddy V fan, so he always says कि आप you are in a firefighting mode every time, right? आपका whole job firefighting है, तो आप इतनी problems के साथ डील कर चुके होते हो कि it won't affect you, तो कोई ऐसा fear होता नहीं है. If your business is sorted ना, आपका business नहीं चल रहा, तो then you have anxiety, you have pressure, बहुत सी चीज़ होती है. अगर आपका business चल रहा है, तो आपके पास कोई ऐसा fear नहीं है. ठीक है. एंड एंटरप्रेन्योर का प्राइमरली काम ही यही होता है कि वो अपने जो रिस्क है उन पे इतने बैरियर्स बनाए कि वो रिस्क उतना रिस्की ना बने. ठीक है. ये एक बिगेस्ट चीज़ होती है उसके लिए. और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इफ़ यू आई टॉक अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मेरे पास 5 या 6 लोगों की टीम थी, उस टाइम माय बेस्ट पीएचपी डेवलपर लेफ्ट मी. एंड आई वाज मैं शैटर्ड था, मुझे नहीं समझ में आया क्या करूँगा, कैसे वापस हायर होगा. हेलो. कैसे Yeah, you वापस are. हायर हाँ जी, कैसे वापस हायर होगा, एंड कैसे हम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर करेंगे, वो ऑल दोस थिंग्स. मेरे पास पीएचडी डेव वापस नहीं आ पाएगा. मैंने इसको इतना सिखाया था एंड ऑल दोस थिंग्स. उसके बाद आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मेरी एक और सीनियर वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉयड डेवलपर लेफ्ट मी. वापस मुझे यही फियर था कि यार मेरे जो एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे होंगे, क्या होंगे, और मुझे वो चीज़ों का फ़ियर था. देन उसके बाद जब वो चीज़ मैंने डील कर ली, मुझे पता चल गया कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द बिज़नेस. लोग आएँगे, दे वुड अपग्रेड इन देयर लाइफ, दे वांट टू गो समवेयर, राइट? उन्होंने आपसे जो सीखना था वो सीख लिया है. अब वो अपने ज़िंदगी के दूसरे मुकाम में जाना चाहते हैं. देन आई बिकेम फियर फ्री ऑफ दिस थिंग कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है. एंड ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं. Okay, so that's a really nice answer. Moving on to the next question. Next is from Harshit Arya. Was there any point in your career where you felt that this whole startup might not actually work? वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन. ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया. आई एम रियली एक्साइटेड टू टेल यू दिस. ठीक है. सो इन द इनिशियल डेज वी स्टार्टेड दिस बैक इन 2017. 2017 से 2021 तक या 20 तक हमने जितनी मेहनत करी है ना, उतनी कभी नहीं करी. ठीक है. उस टाइम पे हमारे पास वी वर नॉट बी एबल टू, मतलब हम लोग जितना अर्न करते थे उतना ही हमारी टीम्स में चला जाता था. एवरी टाइम आज भी मेरे जो पुराने एम्प्लॉय, मतलब जितना हम अर्न करते थे उतना मेरी टीम पे चला जाता था. लेट्स से वी वर अर्निंग एक्स, टीम की सैलरीज एक्स की हैं, वो पूरा पैसा चला जाता था. एंड मेनी मंथ्स ऐसा होता था कि वी वर हैविंग लॉसेस. ठीक है. एट दैट टाइम देयर वाज अ ब्रीफ इंसिडेंट जब हमारे पास बैंक में ऑलमोस्ट शायद कुछ ही पैसे होंगे जिससे हम सैलरीज भी नहीं दे सकते थे. इट वाज, और वो मंथ का ऑलमोस्ट एंड था. हमें सैलरीज नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को देनी थी. तो आई हैड अ डिस्कशन विद माय टीम, माय को फाउंडर्स ऋतिक एंड यश, कि भाई
पैसे बहुत कम बचे हैं, हमें 5 को सैलरी देनी है, तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, अगर ये हमने कंप्लीट नहीं करे और इनसे हमारे पास पैसे नहीं आए, तो वी वुड नॉट बी एबल टू पे द सैलरीज़। और सैलरीज पेइंग ऑन टाइम इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मैं उस पर प्राइड लेता हूँ कि सिंस द डे वी हैव स्टार्टेड हमने कभी भी एक सैलरी को एक दिन भी लेट नहीं किया है। जो हमारी टाइमिंग्स होती हैं सैलरी की, उसमें जाती हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी कभी कभी स्क्रूटनीज पे जाती है, वो अलग चीज़ है, पर इट्स नॉट लाइक कि दूसरी कंपनीज की तरह कि सैलरी 5 की तारीख है हम 20 को दे रहे हैं, तो दैट डज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो हम सैलरी टाइम पे देते हैं एंड दैट इज़ वेरी वेरी पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस फॉर मी। तो उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे। माय को फाउंडर्स ऋतिक, यश, हम लोगों ने बहुत मेहनत से उस मंथ काम किया, उस क्लाइंट से पैसे लिए एंड देन वी पेड द सैलरी। तो हम वो हमारा नियर डेथ escape था। Okay, so that's a quite inspiring story. Moving on to the next question. Next is Akriti Jadon. How do you manage the team when there are disagreements over a particular decision? When there is a disagreement for a particular decision, firstly आपको अपनी जो टीम है उसके साथ डिसएग्रीमेंट, तो फर्स्टली व्हेन देयर आर डिसएग्रीमेंट, आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सुनना चाहिए। क्योंकि ये मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं कम सुनता हूँ, पर सुनना चाहिए। द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको, अगर आपके को-फाउंडर्स के साथ कोई आपका डिसएग्रीमेंट है किसी एक टॉपिक के लिए, तो आपको सुनना चाहिए। उसका क्या पॉइंट है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस प्रॉब्लम के लिए एंड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस प्रॉब्लम के लिए, आपको सुनना चाहिए। एंड देन दोनों को ठंडे दिमाग से उस चीज़ को एनालाइज़ करना चाहिए एंड देन आप एक फाइनल कॉल लेते हो कि हाँ, क्या करना है, राइट? तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि आप सुनो, सामने वाले को इतनी रिस्पेक्ट दो कि हाँ, जो आप बात बोल रहे हो वो सुनी है। आप जो ये बोल रहे हो इस पे ये शायद मेरे हिसाब से गलतियाँ हैं और मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आपके हिसाब से ये गलतियाँ हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एवरी टाइम जब आप को-फाउंडर्स का आपका रिलेशनशिप है, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि उसमें यू हैव अ म्यूचुअल पैक्ट, जो हम ब्रो कोड कहते हैं ना, म्यूचुअल पैक्ट, कि बोल-बोल के मेरी आवाज़ बैठ गई। आपका को-फाउंडर्स का एक म्यूचुअल पैक्ट होना चाहिए कि किसकी फाइनल सेइंग चलेगी। तो लेट्स से आप वी हैव अ डिस्कशन ऑन सर्टेन थिंग, हमने सबकी बात सुनी, एवरीथिंग वाज़ गुड, पर क्या फाइनली हमें करना है? तो यू नीड टू हैव एन ओनरशिप कि हाँ, ये पर्सन जो फाइनल बोलेगा हमें यही करना है, ठीक है? तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वो चीज़ विद टाइम विद रिस्पेक्ट आती है। Yes, so I think that answers our question. Let's see what our next question is. It's Gauri Richaria. When was the first time you thought to be an entrepreneur? इन स्कूल मुझे जब एवरी टाइम आई ब्रीफली रिमेंबर कि जब मेरे स्कूल में सबसे जब भी नई टीचर्स आती थी तो दे यूज्ड टू हैव एन इंट्रोडक्शन सेशन, जब एक एक बच्चा खड़े होकर बोलता था कि माय नेम इज़ हुसैन, और टीचर पूछती थी कि आपको क्या बनना है लाइफ में। सब बोलते थे डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, टीचर, क्रिकेटर। मेरा हमेशा एक आंसर होता था कि आई वांट टू बी अ बिजनेस ओनर, और मुझे अपनी कंपनी बनानी है जिसका नाम था एच सॉफ्ट। मेरी कंपनी का नाम जो मैं बचपन से बोलता हूँ, इट वाज एच सॉफ्ट, एच फॉर हुसैन, सॉफ्ट फॉर सॉफ्टवेयर। तो ये मेरा बचपन से था। और इट जब मुझे 12th में मैंने प्रोग्रामिंग वगैरह सीखी, उसके बाद से ये चीज़ डेवलप हुई थी। Okay. Okay. So moving on to the next question. Uh, it's from Shahstranshu Sevastov. How potent is Bhopal as an IT hub, and what is the future for IT startups in Bhopal? भोपाल भोपाल इज़ वेरी वेरी भोपाल हैज़ अ गुड पोटेंशियल। यहाँ पे यू हैव सम बिग कंपनीज ओवर हियर इन भोपाल, जिन्होंने हमें बताया कि आईटी भोपाल से हो सकता है। यू हैव नेटलिंक्स, यू हैड कोर कार्ड, यू हैव कंपनीज जो रही हैं भोपाल में। पर
Bhopal is still, if you go on to reality, Bhopal is anywhere 3 or 4 years behind Indore. Indore has surpassed us क्योंकि वहाँ पे कुछ बहुत कंपनीज बहुत जल्दी बड़ी हो गई। मेरी आवाज़, हेलो। Yes, sir, हुँ, you're right. हाँ जी, इंदौर में कुछ कंपनीज़ ने इंदौर का पूरा आईटी सेक्टर को चेंज किया, जैसे यश टेक्नोलॉजीज़ हो गई, इन्फोबीन्स हो गई, रिसेंटली सिस्टांगो है, ऐसी बहुत कंपनीज़ हैं जो इंदौर में जिन्होंने आईटी का कल्चर इंदौर के अंदर लाया। हमें भी भोपाल में जस्ट यही चाहिए कि यहाँ पे कुछ बड़ी एंकर टेक्नोलॉजीज़ भोपाल के लिए काम करें, यहाँ पे वो आईटी का कल्चर प्रोड्यूस करें, यहाँ पे वो लोग लेके आएँ और यहाँ पे वो काम हो, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, भोपाल में पोटेंशियल बहुत है, ठीक है? यू हैव ग्रेट कॉलेजेस इन भोपाल, यहाँ से आपको नए अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो यहाँ से आपको फ्रेश ग्रेड्स मिलते हैं। The living cost is relatively lower in Bhopal if you compare it with any metro or any tier 2 city as well. यहाँ पे you have a green and clean environment, तो यहाँ पे लाइफ भी अच्छी है and everything is close by. और भोपाल इज़ बिग एज़ वेल, तो सारे चीज़ें टिक बॉक्स होती हैं। जस्ट जो हमें चाहिए वो ये है कि सम गुड एंकर बिग कंपनी सेट अप देयर हाउसेज़ इन भोपाल और यहाँ से बने। और जब बड़ी कंपनीज़ यहाँ से रहेंगी 500 लोगों की, 400 लोगों की, 1000 लोगों की, तो एक बार वो कंपनीज़ आई ना तो मशरूम ग्रोथ होगी। व्हाट आई मीन बाय मशरूम ग्रोथ इज़ कि अगर एक कंपनी आई है, उसने उसके 100 लोग हैं, तो वो 100 लोग हमेशा उस कंपनी में तो रहेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे। वो छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाएँगे। वो 100 वाली कंपनी भी ग्रो करेगी, वो 120 पे जाएगी, 150 पे जाएगी, तो वो भी ग्रो करेगा। तो वी विल हैव मशरूम ग्रोथ। हमें चाहिए ये है कि एंकर प्लेयर्स चाहिए, जो भोपाल को फ्रंट रख के यहाँ से इन्वेस्ट करें। चीज़ यहाँ पे भोपाल में क्या है कि इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड गुड टैलेंट, राइट? एक्सपीरियंस टैलेंट। हमें जो आज प्रॉब्लम आती है भोपाल में हायर करने के लिए, हमें जूनियर और इंटरमीडिएट टैलेंट तो मिल जाता है। जब आपको बात होती है एक्सपीरियंस टैलेंट की, तो हमें एक्स भोपाल के लोगों को रिकॉल करना पड़ता है। जो लोग भोपाल से माइग्रेट करके दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे चले गए, 2 साल 3 साल वहाँ काम किया है, अगर हमें 5 साल एक्सपीरियंस बंदा हायर करना है तो भोपाल से चांसेस आर कि कोई मिलेगा नहीं। हमें वैसे लोग हायर करने पड़ते हैं जो बाहर से हों, भोपाल के हों या इंदौर के, एंड दे वांट टू सेटल बैक टू भोपाल। या Hope Bhopal fulfills its potential. श्योर Let's श्योर। see what our next question is. So it's from Pavitra Pandey. How do I know that I have the potential to become an entrepreneur? यू वोंट, आपको नहीं पता होगा, ठीक है? एंड इट्स वेरी नाइव टू से कि मुझे पता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, राइट? चीज़ ये है कि आपको एफर्ट डालना है, यू नीड टू वर्क, यू नीड टू पुट इन द आवर्स, ठीक है? आप अगर सक्सेसफुल हो गए तो बहुत कुछ पा लोगे, नहीं सक्सेसफुल है तो बहुत कुछ सीख लोगे। सो देयर इज़ नो लॉस। आप अगर कर पा रहे हो किसी चीज़ को, तो अगर सक्सेसफुल हो गए तो बहुत कुछ पा लोगे, नहीं सक्सेसफुल हुए तो बहुत कुछ सीख लोगे। तो कोई लॉस नहीं है, यू शुड ट्राई एंड यू वोंट नो कि आप सक्सेसफुल हो गए कि नहीं। Okay, sir. I think that completes our question. Next question. It's from Amisha Parmar. How do you balance short-term goals with long-term vision in your business? शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन मैंने आपको बताया कि आई वांट टू वी वांट टू बिकम द बिगेस्ट कंपनी आउट ऑफ भोपाल, ठीक है? तो दैट इज़ द लॉन्ग टर्म विजन। अब आप बोलो कि मेरा मुझे बिगेस्ट कंपनी बनना है भोपाल की और बस आप बैठ जाओ, तो ऐसा होना नहीं है। सो यू नीड टू हैव अ गोल, ठीक है? यहाँ तक का गोल है। आपको अब उस गोल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। यू नीड टू डिवाइड दोज गोल्स इन स्मॉलर अचीवेबल सीएबल टारगेट्स, जहाँ पे आप उन गोल्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमने 2 साल का गोल बनाया दैट वी वांट टू गो टू 100 पीपल, लेट्स से, ठीक है? देन आप स्ट्रैटेजी बनाओगे उस गोल के लिए कि अच्छा ठीक है, हमें 100 पीपल के लिए जाना है, तो अच्छा हमें सेल्स टीम बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, एक बार सेल्स आएगी तो देन वी वुड बी एबल टू हायर मोर पीपल। अच्छा, अब जब हम हायर कर रहे हैं तो वी वुड नीड अ ट्रेनिंग सेंटर जहाँ से हम ट्रेन कर सकें। सो फर्स्टली तो आपको गोल सोचना है विच इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल।
देन उस लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करना है, और शॉर्ट टर्म गोल में डिवाइड करने के बाद उस शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपको प्लान बनाना है कि इसको हम अचीव कैसे करेंगे। एंड देन यू नीड टू बिल्ड अ मंथली रिव्यू कि उस पर्टिकुलर गोल के लिए, जो शॉर्ट टर्म गोल था, उसके लिए आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें आपने क्या क्या अचीव कर लिया। Okay, so I think that answers our question. Moving on to the next. Okay, it's from Akshat sir. Do you face any problem in your daily life and think startup solving this would be so successful? If so, what's that? Do I face anything in my life? And I think if any startup would solve it, they would be successful. India, firstly, to answer your question, no, I don't remember anything, but I would say India is full of problems. आप मतलब we have a big population, and everything everyone has problems. तो आप anyone solving their own problem ना, तो they would be able to build a business. आप अगर अपनी खुद की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लो, you would be able to build a business. और एंड आई बिलीव वो चीज़ बहुत इजीली पॉसिबल है इन इंडिया, वी एज वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एट दिस मोमेंट अवेलेबल। ठीक है, हमारा मार्केट सैचुरेट नहीं किया है, कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सोल्यूशन चाहिए हमें, एंड वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑल्सो, एज आवर थीम इज टू इंकरेज पीपल टू बिल्ड स्टार्टअप्स, मैं आपको एक चीज़ ये भी बोलूँगा कि यूनिक प्रॉब्लम का भी वेट नहीं करना है आपको। इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बिजनेस, आप कोई से भी बेसिक प्रॉब्लम को भी लोगे ना, जो भले ही कोई लोग कर रहे हैं, आप उसको जस्ट बेटर करोगे। ठीक है, आप जस्ट बेटर करोगे, तो देन यू वुड बी एबल टू बिल्ड अ बिजनेस, बिकॉज बिजनेस इज नॉट अबाउट अ प्रॉब्लम और एन आइडिया, मोस्टली इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन। आइडिया आपके पास भी हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है, सबके पास हो सकता है, पर द मैटर इज कि किसने एग्जीक्यूट किया उसको, वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो डिटेल अटेंशन टू डिटेल वहाँ पर है। Okay, so now let's see our next question. It's from Prerit Kushwaha. What is more important to focus on in the early stages? Investing in building a perfect product or investing on growth factors like marketing, teamwork, etc.? मार्केटिंग, फॉर श्योर मार्केटिंग। ठीक है, और दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ एवरी बिजनेसेस करंटली आई वर्क विथ, राइट। मैं उनसे हमेशा यही बोलता हूँ। ठीक है, सो टू आंसर योर क्वेश्चन प्रेरित, आपको पहले एक एमवीपी बनाना है, जो बेयर मिनिमम आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो किसी एंटरप्राइज को बजटिंग में हेल्प करती है, तो बस आपको उतने फीचर्स बनाने हैं। अगर आप एक सोशल नेटवर्क ऐप बना रहे हो जो आपको वॉइस में चैट करने में हेल्प करती है, तो बस आपको वो बनाना है। उसके साथ आप सोचो कि यार इंस्टाग्राम ने फीड्स बना दी, इंस्टाग्राम के पास स्टोरीज हैं, रील्स हैं, तो मैं भी रील का फीचर डाल लेता हूँ, मैं भी लाइक डाल लेता हूँ, मैं भी कमेंट डाल लेता हूँ। आप एक विशियस लूप में फंस जाओगे। आई कॉल इट अ फीचर लूप। ठीक है, इसमें आप नए फीचर बनाते रहोगे, नए बग्स आते रहेंगे, एंड यू वोंट बी एबल टू लॉन्च इट। और एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जिसने वो आइडिया बना रहा है ना, वो अपने आइडिया के साथ प्यार करने लगता है। ठीक है, उसको हमेशा लगता है कि हाँ, जो मैं बना रहा हूँ वो तो परफेक्ट है, वो तो सबको चाहिए, कोई भी ले लेगा मुझसे और ये बिकेगा ही बिकेगा। तो आप नई नई चीज़ डाले जाते हो। द द बेस्ट एडवाइस आई वुड गिव यू, आप एक एमवीपी बनाओ, एमवीपी बना के उसको लॉन्च करो, कुछ लोगों को दो, आइदर गिव इट फॉर फ्री, उसके बाद टेक फीडबैक, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वर्जन्स बनाओ। और जितना पैसा आप डेवलपमेंट में या जितना एफर्ट आप डेवलपमेंट में लगा रहे हो, उससे ज़्यादा आप एफर्ट आप मार्केटिंग में लगाओ, क्योंकि मार्केटिंग करोगे तो चीज़ आपकी बिकेगी नहीं। तो आपने बहुत अच्छा जगह बना दी, प्रोडक्ट बना दिया, पर किसी को पता ही नहीं है, तो आएगा कैसे कोई। तो मार्केटिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। You're right, sir. Really good answer to a really great question. Let's see what our next question. It's from Amisha Parmar. What advice would you give to entrepreneurs about managing finances and securing funds? मैनेजिंग फाइनेंसेस एंड सिक्योरिंग फंड्स, मैनेज तो दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। फर्स्टली इज मैनेजिंग फाइनेंसेस। फाइन, मैंने जैसा बताया कि इट्स, आपको फ्रूगल होना पड़ेगा। ठीक है, यू नीड टू बी फ्रूगल
वंस यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी जगह पैसा आपको लगाना है, कौन सी जगह नहीं लगाना, बिना उसके चल सकता है काम। ठीक है। शुरू में ज़रूरी नहीं है कि यू हैव अ वेरी वेरी सेक्सी ऑफिस। शुरू में आपके पास नॉर्मल ऑफिस होगा तो भी चलेगा। वंस यू स्टार्ट हैविंग गुड मनी देन आप ऑब्वियसली बहुत अच्छा ऑफिस बनाओ, या बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्टली यू नीड टू बी फ्रूगल, you need to be mindful of the money you spend. So this is the first thing. Second part क्या था क्वेश्चन का, कि how you secure funds. Secure. So yeah, so firstly, what I believe कि बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप विदाउट मच फंडिंग आप कर सकते हो। सो यू शुड फोकस ऑन दोज बिजनेसेस फर्स्ट। ऐसे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे आप लिटिल टू नो कैपिटल लगा के आप अपने स्वेट से, मतलब अपने एफर्ट से उस बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। तो आपको उन पे फोकस करना चाहिए ताकि आप ग्रो कर पाओ। बट अगर आपके केस में बात करूँ कि आपका कोई ऐसा आइडिया है जिस पे आपको इनिशियल कैपिटल चाहिए ही चाहिए, तो देन आइदर यू कुड बिल्ड अ एमवीपी, जहाँ पे आपने एक इनिशियल एमवीपी बना लिया, एक इनिशियल कस्टमर्स बना लिए। नाउ आपको स्केल करना है, देन यू लुक फॉर आइदर पार्टनर्स हु कैन पुट अप द मनी, और आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा सकते हो। यू कैन रीच आउट टू एंजल इन्वेस्टर्स, you can attend you can reach out to angel investors on LinkedIn, you can attend startup meets and all those things, जहाँ पे आपको exposure मिलेगा and you will be able to get calls from investors. So that is the thing. आपको अगर फर्स्टली, अगर आप बिना फंडिंग के कुछ बना सकते हो तो बहुत सही है। अगर आपको फंडिंग के साथ बनाना है तो फर्स्टली आपका कुछ बेस रेडी करो। आपको आइडिया पे पैसा नहीं मिलेगा, आपको कुछ बेस रेडी करना पड़ेगा। एक बार आपका बेस प्रोडक्ट रेडी हो गया, एमवीपी रेडी हो गया, एंड देन यू आर एबल टू डिस्प्ले दैट एमवीपी और सेल दैट एमवीपी टू सर्टेन कस्टमर्स, देन आपके पास एक पीओसी है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। इस टाइम पे क्योंकि आपके पास पीओसी है तो आपको कम डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। वहीं पे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास मैं एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी बना रहा हूँ, मैंने एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, मेरे पास एक प्रोटोटाइप रेडी है। इस प्रोटोटाइप के मैंने 2 पीसेस बनाए, इसको मैंने एक कस्टमर 2 कस्टमर को भेज भी दिया है। ठीक है, तो मुझे सब पता है यहाँ पे कि कहाँ से माल आना है, कैसे बनना है, सब कुछ मेरा सॉर्टेड है। तो जब आप इसके लिए फंड रेज़ करने जाओगे ना, तो आपको कम डाइल्यूट करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप बस बोलो कि मेरे पास आइडिया है, मैं इस कॉलेज से आया हूँ, मुझे ये बनाना है, मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, तो आपको बहुत डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव योर इक्विटी, ताकि वो आपको लेटर ऑन काम आए। Okay, so let's see what our next question is. Again from Jaydeep. Did you have any mentors or advisors who guided you through the process and how did they help? अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट हैविंग एनी मेंटर्स, दैट इज़ द प्रॉब्लम। हमारे पास भोपाल में ऑलरेडी गुड सक्सेसफुल बिजनेसमैन्स हैं नहीं। अब कुछ बन रहे हैं पर वो करेंटली अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, तो दे आर नॉट इनटू मेंटरशिप एंड ऑल दोज थिंग्स। हमारा वो स्टार्टअप कल्चर नहीं है। अगर मैं यहीं बैंगलोर में होता तो ज़रूर मेरे पास कोई मेंटर होता, पर मेरा अनफॉर्चुनेटली कोई मेंटर नहीं है। माई ओनली मेंटर इज़ माई ears एंड माई आइज़। मैं बहुत कंटेंट देखता हूँ यूट्यूब में। माई माई वाइफ इज़ रियली फेड अप ऑफ मी कि तुम कितना, मतलब वंस यू रीच होम आप पॉडकास्ट लगा के बैठ जाओगे, कुछ करोगे। एंड सो माई ओनली मेंटर इज़ माई ears एंड आइज़। मैं बहुत सी चीज़ें सुनता हूँ, बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ, एंड देन आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। Yeah, that's very good advice to how to use social media for your welfare. Moving on to the next question. It's from Mahi. How is your company different from other companies in the same field? Very, very good question. To answer your question shortly, we are not really different, we are just the fastest growing company. ठीक है, ultimately the services which we give to our clients are the same। आप मैं भी ऐप बनाऊंगा, कोई दूसरा भी ऐप बनाएगा, जस्ट मैं माई कंपनी ट्राइज टू वर्क विथ अ क्लाइंट during their entire journey। तो आपको, you as a business come to us and wants
कि हमें डिजिटाइज होना है, तो मैं आपको खाली एक चीज़ नहीं करूँगा, आपकी वेबसाइट नहीं बनाऊँगा, मैं आपकी वेबसाइट भी बनाऊँगा, मैं आपको आपकी सेल्स टीम के लिए ईआरपी सिस्टम, सीआरएम सिस्टम भी सेट करके दूँगा, मैं आपके इन्वेंट्री एंड प्रोक्योरमेंट के लिए सिस्टम्स दूँगा, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। तो वी हैव दिस, दैट इज़ व्हाई वी आर अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी, नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं। सेकंडली, जैसा मैंने आपको बोला, आ आइडियाज़ में कुछ नहीं रखा, एवरीथिंग इज़ एग्ज़ीक्यूशन, ठीक है? तो मैं जो प्राइड लेता हूँ, द प्राइड आई टेक इज़, मैं जो प्रोडक्ट जिस टाइम में, जिस कॉस्ट में, जिस क्वालिटी में बनाता हूँ, वो क्वालिटी आपको कहीं नहीं बनेगी। दैट इज़ व्हाट माय यूएसपी इज़, कि मेरी टाइम कॉस्ट क्वालिटी इज़ अनमैचेबल एंड अनबीटेबल। सेकेंडली, इफ़ यू टॉक अबाउट द एंटायर यूज़र जर्नी, तो हम खाली सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाते, वी डिजिटाइज़ द एंटायर ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गनाइज़ेशन। Okay, so moving on to the next question. It's from Utkarsha Phole. Looking back at your journey, what is one lesson you have learned that has been crucial to your success? फॉर श्योर। तो मैंने कुछ लेसन्स लर्न किए थे विच आई लर्नड लेट, ठीक है? At the initial days, I was the single person who was doing sales. ये मैं आपको जब की बात बता रहा हूँ, when I was having a 10-member team. I was the one who was doing sales. I was the one who was doing marketing. I was the one who was doing proposals. I was the one who was also servicing the clients, understanding the client. तो यहाँ पे what होता ये था कि मेरे पास दिन ख़त्म हो जाता था पर काम नहीं ख़त्म होता था। तो मुझे नए क्लाइंट से भी बात करनी है, मुझे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनको मैनेज भी करना है, उनको सर्विस भी करना है, ठीक है? सो मेरे पास एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ पे आई वाज इनवाइटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कि आप इस पे बिड करो, एंड नॉट मेनी पीपल आर बिडिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, एंड देयर आर चांसेस कि आप इसको आपको ये मिल जाएगा। पर ऑन द डेडलाइन आई वाज नॉट एबल टू सबमिट द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सुबह से लेकर किसी एक क्लाइंट की डिलीवरी में कोई इशू हो गया था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट इशू, पर कोई इशू हो गया था एंड उसका पूरा प्रोडक्ट चलना बंद हो गया था। तो ही वाज कॉलिंग मी कंटिन्यूअसली कि मेरी ये चीज़ नहीं चल रही, मेरी वो नहीं चल रही। तो उसको सॉल्व करने के चक्कर में पूरा दिन ख़त्म हो गया। जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे उसका टाइम ख़त्म हो गया, एंड वी वर नॉट एबल टू सबमिट इट। उस दिन मुझे समझ में आया कि आई कांट, मतलब वन मैन आर्मी मूवी में अच्छी लगती है, कंपनीज़ में अच्छी नहीं होती। आपको कुछ आपको टीम बनानी पड़ेगी। फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड बिल्डिंग अ डिलीवरी टीम, जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट आने के बाद उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिलीवर कराने में काम करते हैं। सो माय इट्स इन अ नटशेल, माय लर्निंग वाज़ कि हम मुझे मैंने शुरू में बहुत सारी चीज़ें खुद करने की कोशिश करी, वो गलत था। मुझे टीम बनानी चाहिए थी ऑन डिलीवरी एंड डिफरेंट फ्रंट एज़ वेल। हेलो? Sorry, sir. हाँ जी, कैन यू हियर मी? Yeah, am I audible? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑडिबल है। Okay. What key skills are essential for an entrepreneur and how to develop those skills with continuity? की स्किल्स एसेंशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर, द बिगेस्ट स्किल जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ फर्स्टली ही शुड बी अ ड्रीमर, ठीक है? कि वो ड्रीम कर ही कैन डेयर टू ड्रीम। उसके पास परसीवियरेंस एंड परसिस्टेंस होना चाहिए कि वो किसी चीज़ को परस्यू कर सके, एंड जब तक परस्यू कर सके जब तक वो चीज़ अचीव नहीं हो जाती। तो आई बिलीव दीज आर द टॉप 2 स्किल्स एंटरप्रेन्योर शुड हैव, और वो चीज़ उसको ओवर टाइम आती ऐसे हैं जब वो कंटिन्यूअसली एफर्ट करता है एंड ही बिलीव्स इन सर्टेन आइडिया, ठीक है? काम काम मतलब देयर इज अ फेमस सेइंग, काम काम जब लगता है जब आप उस आपका उसमें मन ना हो, ठीक है? अगर मैं कुछ चीज़ को पसंद करता हूँ तो मुझे कभी काम काम नहीं लगता। मैं आपके साथ अभी 10 बजे बैठा हूँ, तो मुझे ये वर्क नहीं लग रहा, आई एम रियली एंजॉइंग इट, बिकॉज मेरे लिए ये वर्क नहीं है, राइट? आप आई बिलीव, हाँ, दिस इज इट।
So let's go to our next question. It's from Prerit Kushwaha. As your company is based on SaaS products, what are your views on lean startups? Is it great for a company whose main product is an application or website like Zomato? Application and a website like Zomato. Uh, lean startup, what I didn't get you what you mean by lean startup, but lean startup का मुझे जो समझ में आ रहा है शायद आप कहना ये चाह रहे हो कि you do not have too many overheads और आपके पास बहुत सारे fixed cost नहीं है. Maybe that is what you mean by a lean startup. आपके पास शायद एक fixed cost और overheads नहीं है, तो that is very good for the starts. आप अगर lean हो तो बहुत अच्छी बात है. That would help you. But my views, Zomato and Swiggy, अगर आपका जैसा जैसा उन जैसा स्टार्टअप है तो you if you are not doing something really different from them, तो there is no point. आप you are just wasting your time. आपको कुछ बहुत डिफरेंट करना पड़ेगा तो आप पैसे बना पाओगे इस पे. नहीं तो नहीं बन रहे पैसे, क्योंकि बिकॉज दे आर वर्किंग फ्रॉम एजेस और उन लोगों ने वो चीज़ क्रैक कर ली है. नाउ यू वोंट बी एबल टू अर्न दैट मच मनी और रेवेन्यू. अगर आप खाली ये सोच रहे हो कि जोमेटो स्विगी एक्स सिटी में नहीं है, मैं एक्स सिटी में ओपन कर लेता हूँ, आई वुड अर्न समथिंग, तो वो मुश्किल है. दे इवेंचुअली वो इसी उस सिटी में इस वजह से नहीं है क्योंकि उधर मार्केट नहीं है. और अगर आपने मार्केट जाके क्रिएट कर दिया तो फ़ौरन वो आ जाएँगे. उनके पास इतना पैसा है कि वो वहाँ पे एड्स देंगे और आपके मतलब आपका बिज़नेस ऑफ हो जाएगा. Yes, sir. So let's move on to the next question. It's from Aryan Sharma. When you recruit an employee, what is that you prioritize in their resume? When we recruit an employee, what we prioritize in their resume. Firstly, the biggest thing which we see in their resume is, do they have the relevant experience what we listed on a job listing. अगर हमने बोला है कि we need a React Node developer with 2 years experience, तो क्या सही में उनको React और Node आता है and do they have 2 year experience. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हम देखते हैं. वी डू नॉट सी कॉलेजेस, वी डू नॉट सी उसने डिग्री पूरी करी है कि नहीं. वी सी के जो हमने जॉब में प्रोफाइल में मांगा है कि आपको 2 साल का रिएक्ट में और नोड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि डू यू हैव दैट और नॉट. ठीक है, वंस आपको ये होगा तो देन वी स्टार्ट डूइंग अ कन्वर्जेशन विथ यू, जहाँ पे हम आपके बारे में समझते हैं कि आप कहाँ से हो, आपकी आपकी एस्पिरेशन क्या, आप क्या चाहते हो लाइफ से. उस कॉल में हम आपके बारे में समझते हैं, हम जज करते हैं कि आपका एप्टीट्यूड कैसा होगा. ठीक है, अगर हमें लगता है कि इट्स ऑन द लाइन कि हाँ जो चाहिए हमें वही हो आप, तो देन वी हैव अ टेलीफोनिक स्क्रीनिंग राउंड विथ यू, जहाँ पे हम 4-5 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं. वो क्वेश्चंस आपने क्लियर करे तो देन वी शेड्यूल फॉर अ टेक्निकल राउंड, जहाँ पे आपका एक 10 मार्क्स का एक पूरा पेपर होता है. Once you clear that, then you go on to a third round, जहाँ पे we call that a culture round और एन अ मिक्स इंटरव्यू. यहाँ पे हमारी सीनियर टीम आपके साथ बैठती है ना, आउट ऑफ द बॉक्स आपके एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन करती है. वंस यू आर क्लियर्ड, यू आर गिवन एन ऑफर एंड अ जॉइनिंग डेट. उसके बाद फिर हम आपके साथ एक एप्टीट्यूड राउंड करते हैं, जहाँ पे हम आपकी इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स को जज करते हैं. ठीक है, दैट इज़ द एंटायर प्रोसेस. ऑल्सो मैं 2 चीज़ें बोलूँगा जो बिगेस्ट मुझे लगता है कि लोग मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि दे रैंडमली अप्लाई ऑन एनी जॉब. ठीक है, मैं मांग रहा हूँ सेल्स गाय, मुझे यहाँ पे ऐसे लोग अप्लाई कर रहे हैं जो डेवलपर्स हैं. मैं यहाँ पे मांग रहा हूँ 5 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पे 2 साल वाले जूनियर बंदे अप्लाई कर रहे हैं. सो पीपल आइदर, आई एम नॉट श्योर कि कैसा होता है बिकॉज आई हैवेंट अप्लाइड फॉर मच जॉब्स इन माई लाइफ, बट मुझे जो लगता है कि लिंक्डइन में बस जॉब देखी, अप्लाई का बटन क्लिक किया, रिज्यूम ऑलरेडी सेव्ड होता है, तो वो सबको जाता है. सो मे बी शायद इस टेंडेंसी से लोग जॉब अप्लाई करते हैं एंड देन एंड अप थक जाते हैं कि यार हमें तो कॉल ही नहीं आता.
आपने राइट जॉब्स पे अप्लाई नहीं किया होता मोस्ट. Yeah. So mainly the summary is apply for the job, apply after seeing the job description if you match with that or not. Yeah. 100%, 100%. So let's move on to the next question. It's from Yati Agrawal. How do you define success? Success is being happy and being fulfilled. If you are happy and fulfilled with your life, कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ और आगे भी मैं ये करना चाहता हूँ, तो देन यू आर हैप्पी एंड यू आर सक्सेसफुल. सक्सेस, बहुत से लोग बोलते हैं मनी सक्सेस एंड ऑल दोज थिंग्स, काफ़ी हद तक सही बात है. पर वंस यू हैव इनफ मनी देन यू रियलाइज के मनी डजेंट मैटर. मतलब एक लिमिट के बाद यू वोंट बी यूजिंग इट. ठीक है, इतना यू विल अपग्रेड इन योर लाइफ. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप टॉप इम्पॉर्टेंट थिंग पूछोगे, दैट इज बीइंग हैप्पी एंड बीइंग फुलफिल्ड इन माई लाइफ और इन एनी वंस लाइफ, के जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. Yeah, a brief but great answer. Moving on to the next question. From Archita Gatani. How do you deal with conflicts with team members? By discussion, I have answered this question previously. के conflicts by discussion, by firstly by keeping अपनी थॉट्स को पुट अप कर सकें, उनको ये लगे कि हाँ हमारी बात सुनी जा रही है. सेकेंडली बाय हैविंग अ वर्ड विद देम ऑन अ लेवल के जहाँ पे आपकी उनकी बात सुन रहे हो, जस्ट आप अपनी बात बता नहीं रहे. आप उनकी जब बात सुनोगे तो देन ऑब्वियसली यू विल फाइंड अ मिडिल वे टू रिजॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स यू हैव. Yeah. So, sir, that marks the end of our Q&A session. थैंक यू. Thank you everyone for your engaging questions and participation, and a very special thanks to sir for sharing their invaluable insights with us today. We hope you थैंक यू. all found the session as inspiring as and informative as we did. So, sir, you wanna say anything? Guys, thanks for having me. It was a pleasure. Hopefully, we will be able to build Bhopal as the growing tech hub of at least MP. And you guys are doing a great job. Thank you. Thank you, sir. We will try our best. So, on behalf of Team ESL RGPV, this is Ayush Shukla signing off. We wish you a great life ahead and looking forward to seeing you at our next session. Thank you, Thank everyone.